Hello everyone, welcome to my channel and this is your Reena ma'am. Today we are going to do class 10th maths exercise 4.1. We have already done question 1, so let us start with question 2. Go to I button and check question 1 there. So what is given in the question 2? Here we have represent the following situation in the form of quadratic equations. यहाँ पे कुछ हमें चार अलग अलग पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन के एंड वी हैव टू convert these situations into quadratic equations, right? So let us start with the very first question given here. The area of rectangular plot is, yes, area of rectangular plot is 528 meter square. So if area is 528 meter square, we all know that for rectangle area is equal to length into breadth, right? So this area is 528 meters square, that is given, and the length of the plot is one more than twice of its breadth. If breadth is x, then it will be one more than twice of its breadth. So let the breadth let the breadth So let the breadth of the rectangle is x meter and its length will be 2x plus 1 meter. Now let us convert it by using the formula area is equal to length into breadth. So area of rectangle is length multiply breadth. We all know that length multiply breadth. अब यहाँ पे length 2x plus 1. If we multiply it by breadth, that is x, so we will get 528. Now we have to simplify this. 2x multiply x है ना, so ये हो जाएगा 2x square, then plus 1 multiply x, it will be x only, and when we transpose this 528 to this side, then it will be minus 528 equal to 0. So this is the final equation we will get from here. तो यही हमें इस कंडीशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन वी हैव. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. In second part we have the product of two consecutive positive integers is 306. So if we are taking consecutive integers, then what to do? सो इस सेकेंड पार्ट को करने से पहले आपको कंजिक्यूटिव का मतलब पता होना चाहिए. ओके, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर. जैसे मैंने अगर लिया 4, 5, 6, 7, 8, ऑल दीज आर कंजिक्यूटिव नंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, मतलब कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स जो लगातार आते हैं. तो आपने यहाँ पे चेक किया, इफ़ यू हैव 4 देन इट विल बी 4 + 1, राइट. मीन्स अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर उसमें एक ज़्यादा होता है. तो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें, अगर हमें लेट करना है कंजिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, सो वी विल टेक दैट लेट द कंजिक्यूटिव इंटीजर्स आर, लेट द कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर ओके. I'm taking one as x and other as x plus 1 क्योंकि वो उससे एक ज़्यादा होगा. And they're saying product of them, their product is also given, so product of them, उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके उनको 306 आएगा. तो अगर आपने मल्टीप्लाई करना है x को x plus 1 से, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा 306 और इसी की हेल्प से हम ये इक्वेशन बनाएंगे. So once we multiply this x by x, we get x square from here. Once we multiply this x by 1, we get plus x from here. Once we transpose 306 here, we get minus 306. So this is our final answer. तो इस सिचुएशन के हिसाब से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. वी हैव टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली. उसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, बस हमें फाइंड करना है, राइट. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the next question, this is given Rohan's mother 26 years older than him.
रोहन की मदर उससे 26 ईयर बड़ी हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑब्वियस कि अगर 26 ईयर मदर बड़ी हैं, अगर सपोज मैंने रोहन की एज को यहाँ पे x ले लिया, तो मदर की एज क्या होने वाली है, उससे 26 ईयर्स ज़्यादा, ठीक है। ये है मदर की एज, ये है रोहन की एज। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट जो है वो होगा 360। तो 3 साल के बाद जो रोहन की एज होगी उसमें 3 इंक्रीज हो जाएगा, मदर की एज में भी 3 इंक्रीज होगा, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 360 आएगा, ठीक है। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सो नाउ यू कैन सी कि 3 साल के बाद रोहन की एज होगी कितनी, x+3, एंड हिज मदर्स एज, क्योंकि 3 साल के बाद मदर की एज में भी 3 साल का इंक्रीज होगा, मदर्स एज विल बी x+26 was already, but +3 will be there, so that much years. So we can say that कि x+29 years ये उसकी मदर की एज होगी 3 साल के बाद. But one thing is more given there, product of their ages. उनकी जो एज होगी 3 साल के बाद उसका प्रोडक्ट गिवन है 360. तो अब जो 3 साल के बाद हमारी यहाँ पे एज थी वो थी x+3 रोहन की एज, उसकी मदर की एज है x+29, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 360. अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन को वी विल मल्टीप्लाई x बाय x+29. ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है ना कि पहले हमने ली फर्स्ट टर्म, इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे द होल second polynomial, then we will take this second term, we are taking this 3 and we are multiplying this by the whole polynomial. So +3 is multiplied by x+29 and then we get is equal to 360. So when we multiply x by x we get x into x, that is x square. Then we multiply x by 29, so we get 29x, then we multiply x by 3 and we get plus 3x, then we multiply 3 into 29 and we get 87 equal to 360. Okay, then what we need to do, x square 29 plus 3 that is 32, x plus 87 minus 360 is equal to 0. Okay, in the next step we have x square plus 32x, then 360 minus 87, it will be so it will be minus 273. So yes, we can say that कि ये जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई है दिस इज आर क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो हमें इस सिचुएशन को भी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, तो ये हो गया है. अब चलते हैं हम लास्ट पार्ट की ओर. सो देखते हैं लास्ट पार्ट में क्या गिवन है. So this is our fourth and last part of question number 2. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed has been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है बट उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है. इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को कम कर दिया जाए, 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, मान लो हमने ट्रेन की स्पीड को x लिया और अब स्पीड कम हो गई तो x -8 हम स्पीड को लेंगे, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर. तो ऐसी कंडीशन में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं. यानी हमें जो यहाँ पे ओवरऑल दिया है वो टाइम डिफरेंस गिवन है. दोनों ही कंडीशन में जो टाइम डिफरेंस है वो गिवन है. दैन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. सो वी नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो पहले हमें स्पीड टाइम का कॉन्सेप्ट
क्लियर करना पड़ेगा, देन वी विल डू दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी द ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो स्पीड होती है वो हमेशा होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम डिफरेंस की टर्म में सबको कन्वर्ट करना है तो टाइम विल बी टेकन एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करेंगे कि टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होता है। तो अगर हम पहली कंडीशन यहाँ पे देखें, इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को कम कर दिया जाए, मान लिया हमने स्पीड को लिया है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये x किलोमीटर पर आवर है, तो अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो स्पीड हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब अगर स्पीड कम हो गई तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो जब स्पीड को कम किया, डिस्टेंस कितना था 480, और टाइम जो स्पीड जो थी वो थी x माइनस 8, तो इसका मतलब ये टाइम ज़्यादा है। 480 डिवाइड बाई x माइनस 8, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमें करना है, ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो ये जो टाइम टेकन है ये पहले जो टाइम लग रहा था उससे ज़्यादा है। तो पहले कितना टाइम लग रहा था, पहले टाइम लग रहा था डिस्टेंस यानी कि 480 वही डिस्टेंस था लेकिन स्पीड थी x, तो पहले जो टाइम लग रहा था वो था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो पहले वाली स्पीड थी वो थी x, 480 अपॉन x, ये इतना टाइम लग रहा था, और अब जितना, अब अगर स्पीड को कम कर दिया तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो हमने इसको ज़्यादा में से कम को माइनस किया है। सो ये डिफरेंस कितना है टाइम का, अगर इन दोनों टाइमिंग्स को माइनस कर दे तो 3 आता है, क्योंकि यहाँ पे लिख रहे हैं 3 आर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं मतलब उनका डिफरेंस 3 घंटे का है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम प्रॉपरली कैसे करते हैं। सो यहाँ पे हमने लिया कि स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 480 किलोमीटर्स। नो, स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, यस वी विल गेट, टाइम को हम स्पीड से एक्सचेंज कर देते हैं और हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो होगा कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस कंडीशन में जो टाइम टेकन लगा, जो हमारी पहली कंडीशन है, जब हमारी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन व्हेन स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, है ना, तो टाइम टेकन यानी कि t1। ठीक है, टाइम टेकन हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट मीन्स कि टाइम टेकन हुआ डिस्टेंस 480 और स्पीड हमने लेट किया यहाँ पे x। ठीक है, तो टाइम टेकन यहाँ पे इतना हुआ 480 डिवाइडेड बाय x। बट अब यहाँ पे एक और सिचुएशन दी है कि अगर स्पीड को कम कर दिया जाए, इफ स्पीड रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, देन न्यू स्पीड विल बी, नई स्पीड जो होगी वो क्या होगी, अगर पहले x थी तो उसमें से -8 कर दिया तो होगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये न्यू स्पीड है। तो इसके अकॉर्डिंग जो टाइम टेकन है वो कितना होगा, लेट्स सी। देखिए दोनों ही केस में डिस्टेंस तो इक्वल ही ट्रेवल किया गया है, तो फिर न्यू टाइम टेकन यानी कि इस बार जो टाइम टेकन है t2 है और वो भी होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो t2 विल बी इक्वल टू 480 है डिस्टेंस और यहाँ पे स्पीड है x माइनस 8। तो ये सोचने वाली बात है कि t1 ज़्यादा है या t2 ज़्यादा है, t1 और t2 के बीच में क्या रिलेशन है, ऑब्वियसली t2 ज़्यादा है, क्योंकि जब हम कम स्पीड से चलेंगे, जब हम धीरे चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, पहले स्पीड x थी तो जो भी टाइम लग रहा था अब स्पीड को डिक्रीज कर दिया गया। आप ही सोचिए, अगर आप दौड़ के जाएंगे तो आपको कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे वॉक करके जाएंगे यानी अपनी स्पीड को रिड्यूस करके चलेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि सेकंड कंडीशन में जो टाइम लगा है वो ज़्यादा है। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी गिवन है कि इन दोनों में टाइम में जो डिफरेंस है ना वो 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है उसको, अगर उसने स्पीड कम कर दी तो हम कह सकते हैं कि t2 माइनस t1 यानी इन दोनों टाइम को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा डिफरेंस 3 घंटों का। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, चलिए मैं दूसरे पेज पे ही करती हूँ इसको,
तो फाइनली आपके पास ये सिचुएशन आएगी कि T2 में से T1 को लेस करें और 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में से आपको समझ आ रहा है कि 480 तो हम कॉमन ले ही सकते हैं, थोड़ा सा ये सिंप्लीफिकेशन का तरीका है, हमारे लिए ईजी हो जाएगा। सो 1/x माइनस 8 बचा और यहाँ पे 1/x बचा एंड इक्वल टू 3। सो वी कैन से दैट कि यहाँ तो 480 रहेगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 1 इंटू एक्स एंड 1 इंटू एक्स माइनस 8। सो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 इंटू एक्स विल बी एक्स देन माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स इज x, माइनस माइनस इज प्लस 8, ओके, डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x को x से, और फिर 8 इंटू एक्स विल बी माइनस 8x, राइट, इक्वल टू, अब इस 480 को, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ है, जब हम उसको ट्रांसपोज करके उधर लेके जाएंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो यस वी कैन राइट इट एज 3/480, ओके। सो नाउ वी कैन सी दैट कि यहाँ पे x से माइनस x कैंसिल हो जाता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 6 जा 0 जा। सो फाइनली आपके पास यहाँ से आएगा नेक्स्ट स्टेप में कि 8/x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1/160। नाउ एक ही स्टेप दूर है बस और हमारा सोल्यूशन आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा, एंड 8 इंटू 160, राइट। सो वंस वी मल्टीप्लाई 8 by 160 we get 1280, right? So we can say that x square minus 8x is equal to 1280, और हमारी जो फाइनल इक्वेशन आएगी, so the final equation will be, yes, it will be x square minus 8x इक्वल टू 1280 है। तो अगर हम इसे ट्रांसपोज करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, एंड दिस इज द सिचुएशन वी आर लुकिंग फॉर, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी आर लुकिंग फॉर। सो ये है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बट हमें टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेके आगे प्रोसीड करना है, और मोस्टली क्वेश्चंस में यही हम यूज़ करते हैं कि पूरी की सारी चीज़ों को हम टाइम की टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन वी मेक द इक्वेशंस, राइट। सो वी हैव completed exercise 4.1 till question number 2. If you like this video, please subscribe my channel. You will get all the solution of NCERT questions in my channel. So subscribe it and press the notification bell to get all the upcoming updates. Thank you so much for watching.